الرحیم، میں ہوں منظور احمد، آپ دیکھ رہے ہیں آسک ڈیجیٹل۔ اس وقت میں موجود ہوں سیو لائف فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں۔ ہمارے ساتھ جو تھرڈ فیز جو شروع ہونے والا تھا، جو شروع ہو چکا ہے بلکہ، تو اس حوالے سے ڈرگ فری پشاور کے جو پیشنٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ یہ بتائیں گا کہ آپ کا جو علاج معالجہ یہاں ہو رہا ہے وہ آپ سر جی آف کورسلی وی آر ہیپی، کیونکہ ہماری جان کو جو ہے نا بہت ہی خطرہ تھا اسی غلط بیماری سے، اور خاص کر اسپیشلی حکیم کی وجہ سے پشاور سیف ڈرگ لائف فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم اس کی بہت بہت شکر گزار ہے کہ ان کی وجہ سے، اور اسپیشلی کمشنر آف پشاور، گورنمنٹ آف کی پی کے کی وجہ سے، ڈائریکٹریٹ آف سوشل ورک کی وجہ سے، سو یہ لوگ دوبارہ اپنی گھر کو آباد کرنے کے لیے اس پر ہماری دل و جان سے اس کی ہم جو ہے نا شکر گزار ہے، اور ہم اس کی جو ہے نا بھرپور کوشش کریں کہ ہم اس کو فائنینشلی سپورٹ کریں، اور ہم حکومت سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کو فائنینشلی سپورٹ دے دیں تاکہ ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ پہنچائے، اور یہ ہمارے لیے یعنی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہم روڈ پر پڑے ہوئے لوگ تھے، ہمارے کوئی اٹھانے والے نہیں تھے، لیکن یہ لوگ آ کر کے ہم کو اٹھایا اور اسی مقام کو ہم کو اس لوگوں نے پہنچایا، اور ہم اس کی جو ہے نا بھرپور صوبائی حکومت سے ہم جو ہے نا خاص کر اسپیشلی کے پی کے آف سی ایم سے وی آر ریکویسٹنگ ٹو دا سی ایم آف کے پی کے ٹو سپورٹ دا سیو لائف ڈرگ فاؤنڈیشن، بیکاز ہی از دا ون آف فاؤنڈیشن that he is built the future of the young generation, because you know better that it is a very bad diseases. For example, I'm being an educator, I'm shameful for you because okay, you are educated person. So one thing I will tell you, you just tell us, are you fully contented, please satisfied from the treatment of Save Life Foundation? Why not, sir? We of course, because it is a very good Save Life Foundation, it is we appreciate. Of course they appreciate. I am also requesting the CM to support the Hakim, Mr. Hakim Sahib, especially because it is a safe, because they have saved a lot of children. So of course when he is speaking to us, he is like our father. Of course I like too much, but the people is afraid from him. But I like him because he is our leader. He is our grandfather at this time. He is our father because he is teaching to us. And of course, so I am also requesting to you to support on the broadcasting. Yes, through media, inshallah, we will support each and everything. So thanks for your kind word. Thanks for our bundle of thanks. Thank you, sir. جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ بتائیں کہ آپ یہاں جو سیو لائف فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں آپ کا علاج ہو رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل جی، ہم مرے ہوئے لوگ تھے اور اس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، خاص کر چیئرمین صاحب کی وجہ سے، اور جو قیادت ہے ان کی وجہ سے ہم کو دوبارہ زندگی ملی۔ ہم تو 3-4 سال سے گھر بھی نہیں گئے تھے، لیکن ابھی 20 دن ہو کر ہم گھر جانے کی کوشش کریں گے، لیکن چیئرمین صاحب کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے، ان کی وجہ ہمیں دوبارہ زندگی ملی ہے۔ شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں کے جو کھانا پینے کا جو سسٹم ہے اس سے آپ مطمئن ہیں، میڈیسن سے مطمئن ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم بہت مطمئن ہیں، ہمیں ادھر ملے بھی نہیں تب بھی انشاءاللہ مطمئن ہیں، کیونکہ ہم ایسے کچرے میں پڑے تھے کہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے، اور یہاں تو ہمیں بہت صاف ماحول ملا ہے، بہت صاف بیڈ، بہت صاف سٹاف سے لے کر حکیم صاحب تک، اور حکیم صاحب سے لے کر صوبائی حکومت کی بھی ہم بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اس طرح لوگ چنے ہیں جو ان کے لائق ہے جی، اور ان کے لائق ہم تو لائق سے بھی زیادہ ہم تو اپنے باپ کی بھی جتنے حکیم صاحب کی ہم مشکور کے کہ انہوں نے اپنے دل سے ہمیں لگایا، کیونکہ ہم تو کچرے میں پڑے ہوئے پھول تھے، کوئی ہم کو گلے سے نہیں لگا رہا تھا، حکیم صاحب نے ہم کو گلے سے لگایا، ہمیں اپنے بیٹے بنائے، اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہا ہے، ہم مشکور رہا ہے۔ شکریہ۔ اچھا اپنا نام بتا دیجیے گا۔ لال بھائی جی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہاں جو حکیم صاحب آپ کا جو علاج معالجہ یہاں ہو رہا ہے، یہاں آپ میڈیکل اسٹاف سے مطمئن ہیں؟ بہت، ہم اصل بات یہ کہتے ہیں نا، پوری لائف فاؤنڈیشن جو ہے نا، اس کا جتنا اسٹاف ہے نا، ہمارے اتنی حفاظت کیے جو ماں جیسا اپنے بیٹے کے کرتے ہیں،
सारे ने हमारा ऐसा मेडिकोज भी हमको टाइम पे मिला है, हमको ड्रॉप का ज़रूरत था तो ड्रॉप मिला है, कि गोली का ज़रूरत था गोली मिले, हम इधर परेशानी पे नहीं समझे। और ना हमको पता है कि हमने नशा किया, हमने नशा छोड़ा, हमको ये पता भी नहीं मिले, थोड़ा नुकसान भी हमको नहीं मिले। हमारा बहुत अच्छा तरीके के साथ 5 वक्त नमाज करते हैं हम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सलाह ताजुद भी करते हैं। और अल्लाह का ये फजल है कि हमारा मुर्दार ज़िंदगी ख़त्म हो गया, आज भी हमारा अपना घर याद होता है, अपना माँ बहन बेटी याद होता है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक नवासा है अब्दुल्ला, उसका नाम है, वो मुझे बहुत याद आता है। तो अल्लाह पाक हमारा पेशावर कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को और भी तरक्की दे दे कि हमारा गरीबों का उसने ख्याल किया। और फिर हकीम साहब को हमारा बात किया, उसने हमको इधर लाए, हमारा बहुत अच्छा हिफाजत हुआ। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़बीउल्लाह है। सही। ये मेजर हकीम साहब का शुक्रगुजार और पूरे स्टाफ का शुक्रगुजार और सेव लाइफ फाउंडेशन का। इधर हमें एक इज़्ज़त मिला है, हकीम साहब ने हमें ऐसे प्यार दिया जैसे बेटों की दिया अपने बेटों के साथ। और भी हमारे बाप तरह का है, इधर खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं, हर चीज़ अच्छी तरह से मिला है, गोली भी अच्छी तरह से मिला है, इलाज भी अच्छी तरीके से। हम इधर के लायक नहीं थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने फिर भी हमें यहाँ लाया और हमें इतनी इज्जत और प्यार दिया। थैंक यू जी। अपना नाम बताएं बेटा। जी। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ जो आप हॉस्पिटल आए हैं, कितने दिन आपके हो गए और आप इनकी मेडिसिन से, इनकी दवाई सुतराई से और उसके खाने पीने से मुतमईन हैं? अच्छा जी। नहीं आती है, पुश्तों में बात करो। दारा तो है जदलता तुम हकीम सेब च ताजल तसाफ इलाज मुआलजे की दागे ना तुम मुतमईन है? आओ जी देर ते मुतमईन हूं, देर कम मेडिकल स्टाफ दे दा, कम से कम साइकेट्रिस्ट दी दा, डॉक्टरानी दी या डॉक्टरान दी दा स्टाफ ना दी दा ना तुम मुतमईन है? आओ जी, आओ दे खस्ते इलाज रवान दे मुंगे हकीम सेब ना दे डॉक्टरान ना नर्सों ना मुंगे खुशहाल। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बता दीजिएगा कि अमूमन ये जो नशे के आदी होते हैं, ये इनका रुझान क्यों इस तरफ आ जाता है, इसका ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। इसके बहुत सी वजूहात हैं। एक तो घरों से तवज्जो का ना मिलना, दूसरी जी, और दूसरी चीज़ जो है मुआशरे में जब ये निकलते हैं बाहर तो कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो ऑलरेडी इन चीज़ों में पड़े हुए होते हैं, और वो जो एक पीयर प्रेशर्स होता है या फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी ये ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं। एक और वजह जो बहुत बड़ी है, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जॉब का ना होना, गुर्बत, ठीक है, अवेलेबिलिटीज़ ना होना, जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो भी नहीं पूरी हो रही होती। उसकी वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप देख सकते हैं कि इनमें हकीकतों को सामना करने की इतनी ताकत नहीं होती, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी हकीकत से फ़रार होकर ड्रग्स में पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये ड्रग्स का रास्ता, ये समझते हैं यही एक रास्ता है जिससे हम अपनी रियलिटी से आंखें चुरा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्केपिंग वे। ये राह फरार इख्तियार करते हैं क्योंकि इनमें वो चीज़ नहीं होती कि वो अपनी रियलिटीज़ को या अपने प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। जब यहाँ इनको लाया जाता है तो इनको एहसास दिलाया जाता है कि दे आर अशरफुल मखलूक़ात, दे आर ह्यूमन बींग्स, इनमें इनबॉर्न पोटेंशियल्स हैं, इनमें क्वालिटीज़ हैं, इनमें स्किल्स हैं, इनमें हुनर है, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रियलाइज़ करवाना और इनको समझाना और उस चीज़ को इनके अंदर उजागर करना कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक मकसद को रखा हुआ है, वो पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पर इलाज की सूरत में इनको दिया जाता है। यहाँ पर इनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पर साइकाइट्री ट्रीटमेंट होता है, साइकोथेरेप्यूटिक सेशंस होते हैं, इंडोर गेम्स होती हैं, इनको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, डिफरेंट टास्क्स अप्लाई किए जाते हैं जिनसे इनके माइंड को चेंज किया जाता है। मेन चीज़ होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो अप्लाई की जाती है जिसके ज़रिए से इनकी सोच को चेंज किया जाता है, और सोच चेंज होने के बाद ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली इनका बिहेवियर तब्दील होता है। और ये
अच्छाई में और बुराई में बहुत अच्छे तरीके से फ़र्क करना सीख जाते हैं. इनको एहसास दिलाया जाता है, इनको रियलाइज़ करवाया जाता है कि गलत क्या है, सही क्या है, घर क्या है, सड़क क्या है, नाली क्या है, बेड क्या है. तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ये समझ जाते हैं. फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है, फैमिली का रोल क्या होता है, इनकी अपनी ज़िम्मेदारी क्या होती है, इनको अपने फ़राइज़ किस तरह से अंजाम देने हैं, किस तरह से अपनी सिचुएशन से कोपिंग करना सीखना है और ओवरकम होना है नेगेटिव साइड्स के ऊपर. ये चीज़ सब जब इनको सिखाई जाती है और ट्रीटमेंट के थ्रू, ये एक थ्रू प्रॉपर एक चैनल है जिसके ज़रिए से इनको ये सिखाया जाता है. अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त इस सेंटर में आप लोगों के पास कितने पेशेंट हैं? 160. और दूसरी बात ये बताएं कि मेजॉरिटीज़ में यंगस्टर हैं या ओल्ड एज वाले भी हैं? डिफरेंट एज के हैं, लेकिन मैं बड़ी इस बात के ऊपर मुझे दुख भी होता है कि यंगस्टर्स हैं और मिडिल एज के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं. देखिए, क्रॉनिक ड्रग डिसऑर्डर्स जो है CDD, वो तो चले, उन्होंने अपनी लाइफ 50 साल की उम्र तक होकर क्रॉनिक केसेस में आ गए. लेकिन जो हमारे पास 24 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30, 32, ये ऐसी एजेस हैं जिसके अंदर जो है लोगों को आगे कुछ अपने आप को बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है अपनी फैमिलीज़ के लिए. जब वो लोग इस ड्रग्स में आ जाते हैं तो फिर उनकी फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? इसलिए मैं समझती हूँ कि जो यंगस्टर हैं वो यहाँ पर ऐसी तादाद है जो ज़्यादा है और हमें उनके ऊपर ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए. हम तो फैज़ सब पे फोकस करते हैं, लेकिन उन पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि उन्होंने आगे अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना है, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है, ख़ुद अपनी ज़िंदगी के लिए उन्होंने सोचना है, अपना फ्यूचर उन्होंने उसको फोकस करना है. और इसके अलावा इस कंट्री के लिए वो बहुत बड़ा एक हिस्सा है. आगे जाकर उन्होंने अपनी कंट्री के लिए एक पॉजिटिव अपना जो है बिहेवियर शो करना है. दैट इज़ very much important.